Good everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Pranita bringing you today top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. US President Donald Trump announced Thursday that Israel and Lebanon have agreed to extend their ceasefire by an additional 3 weeks. This agreement followed discussion with senior officials from both nations. Speaking to the reporter at the White House, President Trump stated, "We had a great meeting with the very high official of Lebanon and the very high official of Israel." He added that he anticipates the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel will visit Washington in the coming week. The meeting was described as having gone. The statement reiterated that US will work with Lebanon to help it protect itself from Hezbollah and confirm the 3 week ceasefire extension. It also expressed President Trump's anticipation hosting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Lebanese Prime Minister Joseph Aoun in the near future, calling the gathering a great honor and a very historic meeting. They like each other. I found that out today, and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. And we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are. They're great people, the Lebanese people. We have our ambassador here who has done a fantastic job. Ambassador to Lebanon from the United States. And we had a great conversation, and I think it's the beginning of something very important. It'd be a wonderful thing to get this worked out simultaneously with what. A significant development has been observed within the Aam Aadmi Party. Senior party leader and the Rajya Sabha MP Raghav Chadha has reportedly resigned from the Aam Aadmi Party. Furthermore, he has indicated that 2/3 of the AAP members in the Rajya Sabha are set to merge with ruling BJP. Raghav Chadha made this announcement during a press conference in Delhi, surprising many across the nation, speaking in the presence of MP Sandeep Pathak and Ashok Mittal. Chadha stated that the 7 of Aam Aadmi Party Rajya Sabha members have decided to merge with the BJP in accordance with the provision of India Constitution. Recent discussions have suggested disagreement between Raghav Chadha and the top leadership of the Aam Aadmi Party over the past few days. Today's decision presents a major series for the Aam Aadmi Party and the Rajya Sabha. The substantial uphill is being linked to the significant political earthquake, not only in Delhi but also national political stage. All eyes are now when the BJP will formally accept these members. The 2/3 members of parliament belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो. और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है. हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे. और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी.
मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। Union Home Minister Amit Shah has congratulated voters in the West Bengal following a record turnout in the first phase of polling. Shah stated this high voter participation signaled both an end to Chief Minister Mamata Banerjee's rule and a guaranteed victory for the BJP. He asserted that the increased turnout indicated BJP government in West Bengal, predicting that the party will win 110 out of 152 seats in the first phase. Shah also emphasized that the people of Bengal desire change and the son of Bengal will become the state chief minister. He added that the trust will replace fear in Bengal and the safety of women will be a top priority for his party. Furthermore, Shah pleads to the end of corruption prevalent under the current government. बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या? वो आशंका है आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाए। Let's take a break. We will be back soon.
नमस्कार आपन कोन मीडिया ओ एंटरटेनमेंट जगत प्रति पैशनेट आपनको भितरे जदि कंटेंट क्रिएट करिबारो कैमेरा आगरे कथा कहिबारो किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म रे कामो करिबारो इच्छा अछि ताहेले एही सुजोग आपनको पाई मु कथा हेउची एनटीवी निष्कर्षा विषय रे ओडिसारो एको विश्वस्त मीडिया चैनल जहा यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाखो पहुंचु अछि आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिसा रे आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजीशन पाई कैंडिडेट खोजुछु प्रथम वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर जी लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर निज आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिबार एक्सपीरियंस एको बड़ो एडवांटेज भाषा विषय रे आपणकु ओडिया हिंदी ओ इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार जेउ माने अधिक भाषा जानंती तांकु प्रायोरिटी मिलिबो आवेदन करिबा अत्यंत सहज आपणको रेज्यूम शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 9937619039 बा 7894855662 एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे एहा एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत धन्यवाद Welcome once again. Due to the severe heat wave gripping the state, the government has made a significant decision. All schools across the state will now have the summer holiday commerce earlier than scheduled. Consequently, all schools will be closed from April 27th. The proactive measure aimed at ensuring the safety of children has been ordered by the Chief Minister. The summer vacation will begin on April 27 for all the government and aided and private schools within the state. The Chief Minister has approved a proposal from the School and Mass Education Department regarding this matter. Previously, School and Mass Education Minister Nityananda Konda had provided information on this topic on Thursday. This collective decision for early holiday was proposed to the Chief Minister following an important meeting between the Revenue Minister and the Special Relief Commissioner. Furthermore, the Minister clarified that District Collector would also have the authority to make appropriate decision based on specific condition in the respective districts. वर्तमान ग्रीष्म प्रवाह जारी रही अत्यधिक ताती बढ़ी जहाँकि असह्य ये सिचुएशन को धरी वर्तमान अनेक जिल्लार जिल्लापाल माने भी विद्यालय गुड़ाक किछि दिन पाई छुट्टी घोषणा करथिले एवं गतकाली आमर रेवेन्यू मिनिस्टर को अध्यक्षतार एसआरसी मीटिंग होइथिला एवं एसआरसी मीटिंग रो रिपोर्ट प्रकार आज माननीय मुख्यमंत्री ये हिट वेव सिचुएशन को अनुभव करी से समस्त सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय तत्सहित बेसरकारी विद्यालय मानू आसंता 27/4/2026 ठारू 17/6/2026 पर्यंत खरा छुट्टी घोषणा पाई निर्देश देइछंती एवं सही प्रकार आमर 27/4/2026 ठारू समस्त स्कूल गुड़ाक बंद रहिबो एवं जो माने बेसरकारी अनुष्ठान अच्छी से अनुसार से माने भी बंद रखिबे जदि बंद न रखंती कौन जदि घटना घटे से माने दायी रही
देखो शिक्षक मानकर वर्तमान जनगणना भी चालू रही। शिक्षक माने से नियोजित रही जनगणना कहे समय को देखी से निजक सुरक्षित रखिकिना जनगणना कार्य चालू रतबे भी सरकार जमी निर्देश आसो से अनुसार से शिक्षक मान कार्य कहे। तेणु ये विषय रे आगामी दिन में शिक्षक मान कथा भी आसो विभाग तापाई निष्पत्ति नेबे किंतु वर्तमान को जो माने विभिन्न सरकारी कार्य नियोजित अच्छा से आज यूजुआल से कार्य को कर आसबे किंतु जेहेतु अत्यधिक गरम हो असह्य हो सुरक्षा को प्राथमिक दायी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आपको आसंता 27/4/2026 ठारू स्कूल गुड़ाक सबको बंद करने निर्देश देते से दिन ठारू स्कूल गुड़ाक बंद रखे बेले आम पिलांकर सुरक्षा को प्राधान्य दौचु ताकू गुरुत्व दौचु से सबू अंगनवाड़ी अन्य ये भी जो भी पिला माने रहउछंती से गुड़ाक सब छोटी रखे। In Raigada district, unidentified migrants allegedly broke into the house of business Sankar Sanapati in Dan Sahi, Kalyani Singhpur police station area. During the night, the thief reportedly broke the near door of the house and stole 8 grams gold and 3 lakh rupees from the almirah. Sanapati and his family were away attending a religious ceremony in Bhanjanagar and took advantage of their absence. Sanapati informed the police this morning. Police are currently investigating the incident, reviewing CCTV footage from the surrounding area. Local residents have demanded stricter night patrolling with the prevent such occurrence. Meanwhile, other robbery has been reported in Baleswar district. In Anantapur village, Sora block, 2 masked individuals allegedly attacked Pratima Sahu, her home near the Ahapura Chak, taking the advantage of fact no one else was home. The miscreants reportedly snatched a gold necklace from her neck. Anantapur police have reached the scene and are investigating the incident. दिन तले सर हम गाँव जाइलु गोटे मला कार्य करते दिन मंगलवार दिन गलु बुधवार दिन रही आज सकाले आसिलु आसला देखला घरे पूरा घरे दांड बाटे चाबी पड़ी बारी पटे कबाट भांगिक गोटेज भांगिक सब जिनस पत्र फिंगा फिंग कर पैसा सुना थिला धरी पड़े घर देवाई कैश रखी गोटे 3 लाख आमर मिशन सुना गोटे थिला 6-7 तोला मुदी 3टा चेन 2टा ब्रेसलेट गोटे कानर गोटे हार गोटे आगे बोले कहले आम तो जान। In Jagatsinghpur district, SBRs made a significant statement regarding the murder of Susmita Das. It has been revealed that the accused committed this murder out of revenge after the victim family arranged her marriage elsewhere. According to the SP, the accused had attended the engagement ceremony of his former girlfriend. After having a meal there, he called Susmita away and murdered her. This incident has emerged as a tragic example of revenge and love. Police are continuing their investigation and are prepared to take strict action against the accused. एंगेजमेंट सेरेमनी से माने भी अटेंड कले एंगेजमेंट पोरे कोन हैला से तापरे से झियो को डाकिला तापरे से झियो को डाकिला बहाना करकी किछि बहाना करकी आ तापरे सुपारी किलर जेथिला से बिलोरे लुचि की रहितला से झियो जेतेला आसिला तांकर पाटितुंड हैला झगड़ा हैला तो सही मौकार फायदा उठे कि फास्ट जो सुपारी किलर थिला से एब्सकॉन्ड अच्छी ताकू भी हमें बहुत शीघ्र धरि देबु। गत 21 तारीख आमर जगतसिंहपुर थाना रे गोटे केस रुजु होइतला केस नंबर 339 जोटा कि आमर मर्डर सेक्शन रे आमर केस टा रुजु होइतला जगतसिंहपुर थाना रे केस नंबर 339 एथिरे आमर इन्फॉर्मेंट प्रमोद कुमार दास से लिखित आकार रे देइतिले कि तांकर झियो सस्मिता दास से 20 तारीख रो झियो जो अच्छी निखोज हो तो से जिते निखोज जाइए तो तांकर परिवार गुड़ाक आखपाखरे तांकर पड़ोसी घर एवं फैमिली रिलेटिव समस्त पाखरे खोजाखोजी कले किंतु से तांकर
झीर पता पाइलेनी तांकर मोबाइलटा भी फोन स्विच ऑफ बाहरला तो सेतेबेले से व्यस्त होइकी तापर लास्ट जेतेले तांको किछि जना पड़लानी से जगतसिंहपुर थाना को आसिले एवं जगतसिंहपुर थाना रे गुटे एफआईआर देले इमिडिएटली हमर जगतसिंहपुर आईसी एफआईआर रुजु करले आउ हमर एटा को तदंत हमर एडिशनल इंस्पेक्टर सूरज दायित्व नैथिले एवं एसडीपीओ जगतसिंहपुर रश्मि रंजन दास तार सुपरविजन करथिले तो एटा आपण माने जानि की खुशी हेबे विदिन 24 आवर्स ऑफ ऑफेंस एवं विदिन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग आमे ए केस टाकू डिटेक्ट करी कि एक्यूज्ड को आमे झारखंड रु जाई कि तांकू धरी कि जमशेदपुर रु ताकू आमे अरेस्ट करी कि ताकू आमे पुलिस कस्टडी रे आनी छु हमर इन्वेस्टिगेशन रे जना पड़ला जो एक्यूज्ड जो अछि सूर्यकांत स्वाइन से तार ऑलरेडी से बाहागर होई सारछि 2013 रे से बाहागर होई सारतिला तार गुटे पुओ भी अछि किंतु ता बाद भी ये डिसीज जो अछंती तांको संगरे ये कोना को बाना रे गुटे संपर्क एस्टाब्लिश करला एवं दुई जण 2016 मसिया रे तांकर कांटेक्ट हला एवं संपर्क एस्टाब्लिश हला तापर जेंती संपर्क बढ़िला तो ये जो एक्यूज्ड सूर्यकांत से डिसीज ना रे जमी भी किणिची जगतसिंहपुर रे अराउंड 12 लाख्स पे करिकी ता ना रे एलआईसी बॉन्ड भी 10 लाख्स रो एलआईसी बॉन्ड करतिला 2017 मसिया रे जमशेदपुर रे एवं इन्वेस्टिगेशन रे हमको जना पड़ला जो आधार कार्ड जो जियर डिसीज रो जो अछि ता ना रे केयर ऑफ करिकी ये एक्यूज्ड रो ना अछि सूर्यकांत एलियास पप्पू तो माने यही सब एस्टाब्लिश करूची से माने जेहेतु बाहा है नथिले बट तांकर गुटे फिजिकल रिलेशन थिला एवं से माने संपर्क रे रहिथिले एवं हस्बैंड वाइफ भलिया हिसाब रे रहउथिले तो जेते बेले से झियो को जना पड़ला जे ये एक्यूज्डटा जा संगे तार संपर्क रहिची से मैरिड अछि तो तांको भितरे विवाद स्टार्ट हे गला एवं जेहेतु ये एक्यूज्डटा अछि तार ना झियो ना रे ऑलरेडी लैंड किणी देछि 12 लाख टंका रो एवं एलआईसी रो पॉलिसी गुटे 10 लाख रो कर देछि तो से एक्यूज रो भी भय थिला से एई सब पैसा हड़प करी कि जियो नै जिवो तो सेही तापरे तांकर ये Let's take a break. We will be back soon. नमस्कार आपन कोन मीडिया ओ एंटरटेनमेंट जगत प्रति पैशनेट आपन को भितरे जदि कंटेंट क्रिएट करिबारो कैमेरा आगरे कथा कहिबारो किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म रे कामो करिबारो इच्छा अछि ताहेले एही सुजोग आपन को पाई मु कथा हेउची एनटीवी निष्कर्षा विषय रे ओडिसारो एको विश्वस्त मीडिया चैनल जहा यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाखो पहुंचु अछि आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिसा रे आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजीशन पाई कैंडिडेट खोजुछु प्रथम वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर जिए लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर निजो आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिबार एक्सपीरियंस एको बड़ो एडवांटेज भाषा विषय रे आपणकू ओडिया हिंदी ओ इंग्लिश मध्यरु अति कम रे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार जेउमाने अधिक भाषा जानती तांकू प्रायोरिटी मिलिबो आवेदन करिबा अत्यंत सहज आपणको रेज्यूम शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 99376190039 बा 7894855662
एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे, यह एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो। आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु। आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत। धन्यवाद। Welcome once again. Cricket legend Sachin Tendulkar is celebrating his 53rd birthday today. On this occasion, Yuvraj Singh has posted a special message for the cricketer. The BCCI and the Mumbai Indians, along with many fans, have also wishes to Sachin from their Instagram accounts. Yuvraj Singh said his post on X, writing, "Happy birthday. It is a great honor to have played alongside you. Learning from you is an even bigger deal. Your discipline, humanity and affection are inspiration to all us. Thank you for the memories and the inspiration." Regarding Sachin Tendulkar's illustrious career, he scored 100 international centuries, comprising 51 test centuries and the 49 one-day international centuries. Tendulkar's century scoring spree began at the young age of 17 and concluded when he was 38. He scored his maiden test century on August 9, 1990 against the England at Old Trafford in the Dawn Test match. In that inning, Tendulkar remained unbeaten on 119 runs. His 100th international century came on March 16, 2012 in Mirpur against Bangladesh, where the squad won 114 runs. The entire state is experiencing intense heat, with temperature becoming unbearable. The meteorological department had issued a heat wave warning for 6 districts today. This district include Khordha, Kendujar, Anugul, Sambalpur, Jharsuguda and Balangir. Additionally, a yellow warning for heat and humidity has been issued for 17 districts. The department has also alerted 6 districts about thunderstorm. Yesterday, Jharsuguda and Talcher recorded the highest temperature in the state, reaching a scoring 42 degrees Celsius. The mercury crossed the 40-degree mark in 24 other cities. The impact of thunderstorm is expected to increase from 26th of this month. पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल किया है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है 44 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा और थलचर में दर्ज किया गया है। उसके अलावा जो है हमारे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो हम फोरकास्ट देते हैं वो रियलाइजेशन में आया है भुवनेश्वर और कटक स्टेशन के ऊपर, जिसमें कि हमने जो ह्यूमिडिटी है वो अबव नॉर्मल है और जो टेम्परेचर डिपार्चर भी 3 डिग्री से ऊपर रहा है सामान्य से, जिससे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन प्रिवेल की है कटक और भुवनेश्वर के ऊपर। मैक्सिमम विंड स्पीड जो पूरी में 41 km दर्ज की गई है। फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से जो है एक चुट-फुट जो बारिश बनी रहेगी। बाद में जो डे 5, 6, 7 में थोड़ा सिस्टम पीछे सिस्टम आने की वजह से बारिश की जो गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अगर हम बात करें आज के फोरकास्ट की तो 24 को 1-2 स्थानों पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, जिसमें कि कोस्टल उड़ीसा, रायगढ़, कोरापुट, कानगिर, नवरंगपुर, कंधमाल, रायगढ़, मयूरभंज, केवंझर, कालाहांडी ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। वार्निंग जो भी है 30 to 40 kmph के साथ जो है गस्टी विंड स्पीड रह सकती है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रह सकती है, जिसमें गजपति, गंजम, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, कालाहांडी ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। That's all for now. Stay tuned for more updates.